पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। पतरस को परमेश्वर हाथ से छुड़ाने के बारे में इस वचन में पढ़ा था। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। पतरस को आश्चर्य रीति से परमेश्वर ने छुड़ा के लेके आया। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ये पतरस दूसरी बार इस जेल में चलेगा था। ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। पहले बार वो खुद छुड़ा के वापस आ गया। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। दूसरा स्वर्गदूत ने इसको छुड़ा के लेके आया था। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इस वचन में अब दो प्रकार के शब्द को हम देख सकते हैं। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हेरोद की हाथ से भी परमेश्वर ने छुड़ा दिया। ਅਤੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ। यूद लेख बुद्धि की से भी परमेश्वर ने छुड़ाया। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हेरोद की हाथ में हम पकड़ होने से छुड़ाने के लिए परमेश्वर हमको मदद करना चाहिए। ਅਤੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ये ਹੈ। हेरोद कौन सी हेरोद है? ਇਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? बड़ी हेरोद का पोता। ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ये ਹੋਵੇ। हेरोद के नाम हेरोद अग्रिप्पा 1। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਅਗਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ये ਸੀ। हेरोद के नाम हेरोद अग्रिप्पा 1 है। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਅਗਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ये 54 उम्र में ये हेरोद ने मृत्यु हो गया था। 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हिस्ट्री के लिए देखने से ये दुनिया में फर्स्ट कैंसर आने वाला इंसान हेरोद है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ये हेरोद फैमिली एक और बहुत ज्यादा सबको कठिन मार्ग में लेके जाने वाला परिवार था। ਇਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਠਿਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। हेरोद हमारा विरोधी है। ਇਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। यीशु जन्म होने के समय इन्हें परमेश्वर के विरोध में भी यीशु के विरोध में भी काम किया बोल के हम सबको पता था। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। आजकल कलीसिया में हेरोद की हाथ बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ये ਹੈ। हेरोद के बारे में हम देखने के समय हम ये हेरोद एक और घमंड इंसान बोल के भी हम देख सकते हैं। ਅਤੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮੰਡੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ये ਹੋਵੇ। परमेश्वर को महिमा नहीं देते, इस खुद की महिमा के लिए सब कुछ करते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਲਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। शैतान की हरेक तंत्र हरेक ट्रिक्स ये हेरोद के अंदर है। शैतान ਦੀ ਹਰੇਕ ਚਲਾਕੀ ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚਤੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। लेकिन खुदा ने अच्छी प्रार्थना के द्वारा लड़के प्रार्थना के कारण पतरस को हेरोद के हाथ से छुड़ा दिया था। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦੁਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ये प्रचार को मैं दो प्रकार रीति से अलग कर लेते हैं। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हेरोद के हाथ से होने वाला बंधन प्रार्थना के द्वारा होने वाला छुटकारा। ਅਤੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਛੁਟਕਾਰਾ। कलीसिया में हेरोद के हाथ आजकल बहुत ज्यादा चलते हैं लेकिन ज्यादा लोग को पता नहीं चलता है। ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ इसकी ਹੋਵੇ। पहले काम क्या था? ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? प्रेरित के काम 12 अध्याय का पहला वचन में पढ़ने के समय ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 12 ਬਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ प्रेरित के काम 12 अध्याय का पहला वचन। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। कलीसिया में बहुत ज्यादा दुख देके उसके विरोध में हाथ डाल देते हैं। ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ये ਹੋਵੇ। हेरोद का शक्ति
कलिसिया में होने वाला हरेक लोगों को दुखी देना अनुभव को देखा थे। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ये हेरोद का सामर्थ्य कलिसिया में होने के कारण ज्यादा परिवार ज्यादा लोग आजकल दुखी में परमेश्वर भवन में आते हैं लेकिन दुखी के साथ दोबारा वापस भी चले जाते हैं। ਇਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ये निंदा करने वाला एक और स्पिरिट था। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਸੀ। कलिसिया में आते लेकिन हमारे जीवन में ज्यादा निंदा भी आ जाएंगे। ਅਤੇ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। हमारा आराधना को रुकावट करने वाला स्पिरिट ये हेरोद के अंदर है। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ आजकल ਅੰਦਰ हमारे लोग क्या सोच लेते हैं? ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ अब ਸੋਚਦੇ ਹਨ इस हफ्ता परमेश्वर भवन में नहीं जाने से कोई बात नहीं, एक हफ्ता है तो दूसरा हफ्ता में चले जाएंगे। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ लेकिन हमारे लिए सिंपल बात है, लेकिन आपकी विरोध में ये हेरोद की बड़ी हाथ काम करते जा रहे हैं। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ दो प्रकार दुख के बारे में हम बाइबल में देख सकते हैं। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ आत्मिक रीति के लिए परमेश्वर के लिए कष्ट उठाने वाले एक और दुख है। ਅਤੇ ਰੋਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ लेकिन शैतान की काम के द्वारा कलिसिया में एक हाथ बड़े बड़े काम करते जा रहे हैं। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज भी परमेश्वर हजूरी में आके बैठ रहे, आप सोच के देखो परमेश्वर भवन में आते लेकिन ये हेरोद की कलिसिया में दुख देने वाला शत्रु आपके अंदर काम करते नहीं है। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ज्यादा परिवार को पता नहीं चलते इसके हाथ से कैसे बाहर आना चाहिए। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। लेकिन हमारा आराधना करने वाला परमेश्वर हमको दुख होने के लिए कभी भी नहीं ਪਰ छोड़ता। ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ इस ਛੱਡਦਾ। सुबह का समय ये पवित्र आराधना में आप बैठ रहे एक एक शब्द को विश्वास से सुनो। परमेश्वर ने आज ही हेरोद के हाथ से आपको भी आपको परिवार को भी जरूर छुड़ाएंगे। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ये ਲਵੇਗਾ। हेरोद की हाथ दूसरा कौन सी काम कर लेते हैं? ਇਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? बेटे के काम 12 अध्याय के दूसरा वचन में हम देख सकते हैं। रसूलों ਦੇ ਕਰਤੱਵ 12 ਬਾਪ ਦਾ 2 वचन 12 अध्याय के दूसरा वचन। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। योना की बाई को याकूब को ये तलवार से मार लेते। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। आज भी हम शरीर रीति से तलवार से नहीं मारते, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ लेकिन ਜਾਂਦੇ ज्यादा लोग आत्मिक जीवन मृत्यु होते जा रहे हैं। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। एग्जाम्पली हम आदम हवा को ले लेंगे। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ आदम को परमेश्वर ने बताया था ये फल को खाने से अब मृत्यु हो जाएंगे। ਅਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਫਲ ਖਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ लेकिन ये तो जीवन तो नहीं मरा, लेकिन आत्मिक के जीवन में महिमा के जीवन में अनुग्रह के जीवन में मृत्यु हो गया था। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। जिंदा के साथ अच्छी श्वास लेके इधर बैठ रहे, लेकिन आपकी आत्मा की हालत आज कैसे था? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ खाली नाम के लिए परमेश्वर भवन में आके कोई भी फायदा नहीं है। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। आपके पास बैठने वाला अन्य भाषा में बात करते हैं, आप क्या करते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? आपके पास बैठने वाला को परमेश्वर को प्यार में कितना बढ़ते जा रहे हैं, आप क्या करते हैं? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जिंदा तो है लेकिन आत्मा मृत्यु हो गया था। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ये ਹੈ। प्रॉब्लम अंतिम दिन में आदम हवा को भी उस वैटिका में हो गया था। ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। योना 10 अध्याय के 10 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? ਯੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜਿਲ 10 ਬਾਪ ਦਾ 10 ਵਚਨ। चोरी वाला किसके लिए आ जाता है? ਅਤੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? योना 10 अध्याय के 10 वचन। ਯੋਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਬਾਪ ਦਾ 10 ਵਚਨ।
चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु हमको जीवन देने के लिए आया था, यीशु सानू जीवन देने वास्ते लेकिन आया। चोरी वाला किसके लिए आ जाता है? पर चोर किस वास्ते होता है? हमारे लिए नष्ट करने के लिए, हमको नष्ट करने के लिए आ जाते हैं। सानू नाश करने वास्ते होता है। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। आज भी परमेश्वर भवन में आ गया। कितने लोग अपनी पवित्र आत्मा का बल को नष्ट किया था। आज ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ खुद हो। अपने भी बुद्धि नहीं है, अपना बच्चे को भी सीखते नहीं है। ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। हर संडे आप लोग को बच्चे के पीछे तो बैठ रहे हैं, लेकिन इधर बैठने वाला कोई भी बच्चे पवित्र आत्मा नहीं भरते, आंख बंद नहीं करते, ऐसे रहते, ऐसे चलते। ये आत्मिक जीवन आप सोचो, आप मृत्यु हो गया, अपना बेटा बेटी भी मृत्यु हो गया था। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੌਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ परमेश्वर ਚੁੱਕਾ है। नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। बच्चे छोटा था, लेकिन स्वर्गीय दर्शन को देखने वाला बच्चे भी गए। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਪਰ स्वर्गीय दर्शन ਨੂੰ ਦੇਖਣ वाले ਬੱਚੇ ਵੀ लेकिन ਹਨ। आपके बच्चे के आत्मिक जीवन में जिंदा है, मृत्यु है, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ उसके ਹੈ अंदर चोरी वाला आ गया क्या? क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। चोरी करने के लिए आ गया क्या? कि ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ उसकी ਕਰਨ ਵਾਲਾ आत्मा को ਆ ਗਿਆ। नष्ट करने के लिए आ गया कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ क्या? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। आज एक शैतान के हाथ से परमेश्वर जरूर कलीसिया को छुड़ाना चाहिए। ਅੱਜ शैतान के हाथों परमेश्वर जरूर इस कलीसिया ने छुड़ाना चाहिए है। इस दिन में कन्वेंशन का समय हम नाम के लिए आते, नाम के लिए अपने परमेश्वर भवन में आते जाने से क्या फायदा हो जाते हैं? ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। रोड में जाने वाला को पूछने से क्या था, 4 दिन मेला था, इधर हलवा मिल जाएंगे। ਅਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਲਵਾ कि ਮਿਲੇਗਾ। पास में दुकान वाला बोलते बार बार मुझे लुंगी लेके आना चाहिए। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੁੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आप किसके लिए परमेश्वर भवन में आएंगे? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? हलवा खाने के लिए, चिप्स खाने के लिए नहीं है, आत्मिक बल पाने के लिए था। ਹਲਵਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, चिप्स ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ नहीं, पर आत्मा ਦਾ बल पाਉਣ ਵਾਸਤੇ वो ਆਓ। लोग को पता नहीं था, लेकिन इधर मेला नहीं है, स्वर्गीय परमेश्वर जिंदा बोल के आपको मुझको ये पता चलता है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ स्वर्गीय परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ परमेश्वर ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ ये हो। शत्रु के हाथ क्या था? हेरोद के हाथ हमारा आत्मिक जीवन को मृत्यु कर लेते हैं। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 छोटी लड़की गाड़ी चला रहे थे, ਦੋ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀਆਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ एक ਸਨ ग्राउंड में था। ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। वो एक लड़की बता रहे, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ब्रदर वो गीत गाने से मुझे बड़ा अभिषेक आ जाता है। ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। कौन सा गीत था? क्या बोलते हैं, अब यूथ मीटिंग में एक सॉन्ग था, क्या क्या बोलते हैं, अभी भूल गया, मुंह में नहीं आ रहे। वो गीत गाने से उसका अभिषेक आता है, और कुछ भी अभिषेक नहीं आता है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। लेकिन ऐसे अभिषेक नहीं है, जिंदा परमेश्वर एक एक दिन आपकी दिल में अपने प्यार को प्रकट करते जा रहे हैं। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ परमेश्वर ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ एक ਕਰਦਾ ਹੈ। चोरी वाला कलीसिया में होने वाला हर एक आत्मा को नष्ट करने के लिए हर है तूने छात्र के जय पाना चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ये हेरोद के हाथ को तीसरी काम किया था। ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? तीसरा वचन पढ़ेंगे। 3 वचन पढ़ाएंगे। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया और वे दिन अखमीरी रोटी के दिन परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। पतरस को भी पकड़ लिया था। उसने पतरस ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। बाइबल दूसरा बाइबल में लिखा था पतरस को पीछे पड़ा था। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ कि पतरस ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ये है। हेरोद की शक्ति कौन सी शक्ति पता? आपको पीछे पड़ते रहेंगे। ਇਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ ये हो। शत्रु आपके पीछे आते रहेंगे। ਇਹ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। आपको कभी भी नीचे डाल के आपके परिवार में कभी भी उन्नति पाने के बिना ये शत्रु आपके पीछे पड़ते रहेंगे। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ
परिवार ਵਿੱਚ ਕੋਈ बढ़ोतरी पाए बिना ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। शाऊल कैसे दावीद के पीछे पड़ा था? शाऊल जिस तर੍ਹਾਂ दाऊद ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ, दावीद बोलते वो मुझे मार डालने के लिए मेरे पीछे पड़ते जा रहे हैं। दाऊद ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। पहला शामिल 24 अध्याय के 24 वचन में 24 अध्याय के 14 वचन में हम देख सकते हैं। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂएल 24 ਬਾਪ ਦਾ 14 वचन से ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। निर्गमन 15 अध्याय के 9 वचन में क्या देख सकते कुछ हैं? की किताब 15 बाप ਦੇ 9 वचन से ਕੀ पढ़ते हैं? फरवो ने इस्राएल के विरोध में पीछे पड़ गया था। ਅਤੇ ਹਰਮੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। परमेश्वर नाम के स्तुति। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ कोई ना कोई शक्ति आपको पीछे पड़ते जा रहे हैं। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ। शराब आपके परिवार को पीछे पड़ते जा रहे हैं। ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ। कितना भी उधार देते, कितना भी कमाई करते, फिर भी आपके घर में कर्जा लेके कर्जा करने के अनुभव अभी तक नहीं छोड़ा। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। विलाप गीत 4 अध्याय के 9-19 वचन में क्या पढ़ते हैं? ਵਿਲਾਪ ਗੀਤ 4 ਬਾਪ ਦੇ 9 वचन से ਕੀ पढ़ते हैं? 4 का 19 में क्या पढ़ते हैं? 4 ਬਾਪ ਦੇ 19 वचन से ਕੀ पढ़ते हैं? इस्राएलियों के विरोध में कलदेयर लोगों ने पीछे पड़ गया था। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਕਲ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ इसलिए ਸਨ। शत्रु आजकल क्या करते हैं? हमारे पीछे पड़ते जा रहे हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਕੀ करता है? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। शैतान कैसे रहेंगे? शैतान किस तरह अब होगा? गेट के अंदर एंट्री होने के समय ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ गेट के अंदर एंट्री होने के समय बंदर के समान जंप करके दीवार में बैठ जाएंगे। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੰਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ इधर ਜਾਏਗਾ। आने से अच्छा ताली बजाएंगे, अच्छा गीत गाएंगे, अच्छा खुशी के साथ रहेंगे। दोबारा गेट से बाहर जाएंगे ना, दोबारा वो बंदर वेट करके बंदर के समान उस शत्रु ने क्या करते हैं? हमारे ऊपर बढ़ जाएंगे। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ आराधना में ਜਾਵੇਗਾ। परमेश्वर ने आत्मा को बेचते एक और बड़ी छुटकारा को देते, लेकिन दोबारा वो शत्रु पीछे बढ़ जाते हैं। ਅਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ- ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दावीद क्या बोलते हैं? ਪਰ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? भलाई अनुग्रह मेरे पीछे पड़ना चाहिए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ परमेश्वर है। नाम के स्तुति। परमेश्वर नहीं एक तारीफ। जवान लड़का ने इस तरफ से बताया था, एक जवान लड़के ने इस तरह दसिया, मैं भी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, मैं बहुत दुआ करता लेकिन हूँ उस शैतान को मैं छह नहीं पा पर सकता। उस शैतानों पे फता नहीं पा रहे। परमेश्वर नाम के स्तुति। परमेश्वर नहीं तारीफ। उसका ऐसे जवाब दिया था, उसने इस तरह जवाब देता, एक आपको पैकेट में एक और चुक्का मच्छी रखो, चुक्का मच्छी पैकेट में रखो। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਮੱਛੀ ਰੱਖੋ। चुक्का मच्छी रखने से कौन पीछे पड़ जाएंगे? ਸੁੱਕੀ ਮੱਛੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? कौन पीछे पड़ेंगे? कुत्ता, बिल्ली पीछे पड़ जाएंगे। बिल्ली पीछे आवेगी। परमेश्वर नाम के स्तुति। परमेश्वर नहीं ए, तारीफ। बिल्ली जाओ। बिल्ली तो जा, बिल्ली जाएंगे, कि बिल्ली जाएगी? परमेश्वर नाम के स्तुति। परमेश्वर नहीं तारीफ। कितना दिन तक आपके अंदर ये सुक्का मच्छी है, उतना दिन तक बिल्ली पीछे पड़ते जाएगी। जब तक ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। लेकिन बिल्ली को जाओ बोलने से नहीं जाएगी। पर जब बिल्ली ने कहोगे जाओ तो वो इस नहीं जाएगी। सुक्का मच्छी को उठा के फेंकना चाहिए, बिल्ली तुम्हारा पीछे नहीं आएगी। ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ नहीं लेकिन आएगी। कलिसिया में आप लोग बहुत वचन सुनते, बहुत सच्चाई सुनते, फिर भी आप लोग हमारे अंदर भी क्या था? ये सुक्का मच्छी को उठा के फेंकने के समान वो भाव को वचन के अनुसार फेंकने के मन नहीं था। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸੁੱਕੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। थोड़े छोटी प्रार्थना में पसंद हो जाते, थोड़े पसंद होते, खुदा पसंद नहीं होते। ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। परमेश्वर नाम के स्तुति। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ इस ਤਾਰੀਫ। शैतान ने आपको पीछे पड़ते जा रहे हैं। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ये हेरोद की शक्ति था, ਇਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ उसकी ਸੀ। हाथ हमारे विरोध में काम करते जा रहे ਉਸ ਦਾ हैं। ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ परमेश्वर ਹੈ। नाम के स्तुति। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ कुछ ਤਾਰੀਫ। बच्चे लोग को पता नहीं चलते ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ इधर क्या चलते है, ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ कुछ ਹੈ। बड़े लोग को भी पता नहीं चलते ਕੁਝ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ इधर क्या ਲੱਗਦਾ चलते है। ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। मीटिंग के बाद परमेश्वर ने क्या बात किया? ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? अच्छा बात किया। ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ क्या ਕੀਤੀ ਹੈ। बात किया? ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? अच्छा बात किया। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ विश्वास के साथ रहना चाहिए। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ पता भी नहीं चलता हमको। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। विश्वास के साथ रहना चाहिए, ਬਸ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ पवित्र के ਚਾਹੀਦਾ, साथ रहना चाहिए। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन पीछे बनने वाला शत्रु को फेंकने के अनुभव आजकल किसी के अंदर उसके लिए बुद्धि आज तक नहीं आया था। ਪਰ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ये पत्थर के पीछे ये पड़ जाएंगे। ਇਹ पतरस ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। परमेश्वर नाम के स्तुति। परमेश्वर नहीं तारीफ। फोर्थली एक और शब्द को हम देखने के समय चौथा एक और शब्दों से देखते हैं। फोर्थ वचन पढ़ेंगे। चौथा वचन पढ़ांगे।
उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार की वे पसार के बाद उसे लोगों के सामने लाए। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वराची तारीफ होवे। उसको पकड़ के बंधन में डाल दिया था। उसने जरा उसने फड़ के उसने कैदखाने में सुटाया गया। ये शैतान ने कैसे काम करते हैं? ये शैतान किस तरह काम करता है? आपको बंधन में डालूंगा। वो तो जरा गुलामी च पा देवे। कोई ना कोई बात में बंधन से बाहर आने की नहीं छोड़ता। अते किसी ना किसी गल विच पाके वो तो बंधन तो बाहर आने छड़ेगा। आप छुटकारे के साथ रहने से खुदा ने आपके अंदर काम करके स्वर्ग में ले चले जाएंगे। क्योंकि जरा जेकर तू छुटकारे दे ना रहोगे तब परमेश्वर तुम्हारे अंदर कोई ना कोई काम करेगा। अते तुसी उस स्वर्ग में चले जाओगे। कल भी मैं बाइबल से टैरी मीटिंग में बताया था। कल भी मैं टैरी मीटिंग च दसया था। सिमसोन के पीछे पढ़ते जाएंगे। सिमसोन के पीछे क्या था? इस शत्रु ने बंधन में डालने तक नहीं छोड़ा था। अति जरा शिमशोन दे पीछे जरा वो वैरी पैंदा रहा अति उसने बंधन उसने गुलामी विच पाए बिना उसने छड्या नहीं। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। दो क्या करते? दो बंदर ने खेलने के शुरू किया था। अति दो जो बंदर सन उन्होंने खेलना शुरू किया। एक बंदर क्या बोल रहे? एक बंदर की कहता पहले है मैं आपको पाँव को बांधेंगे। पहले मैं तेरे ना पैर नो बांध दवांगा। फर्स्ट बार बांध लिया था, उसने पहली बार बांध दिया, निकाल दिया था। फिर उसने खोल दिया। दूसरी बार बांध लिया था, दूसरी बार बांधता, निकाल दिया था। फिर उसने खोलता। तीसरा बार अच्छा टाइट करके बांध लिया था। तीसरी बार अच्छी चंगी तरह अभी टाइट आगे करके बांध। पीछे नहीं सकते। बंधन में जेल खाना चाहिए। आते हुन जरा वो आगे पीछे नहीं जा सकता। उसने जरा कैद खाने में उनको बांध लिया। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ते हैं? अगला से की पढ़ते वो हैं। वचन दोबारा पढ़ेंगे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार 16 लोग रख दिया था। उससे जरे सिपाही जरे 16 रोकन रखा गया। 16 सिपाही को रख के ड्यूटी शिफ्ट मार मार के 4 लो फर्स्ट शिफ्ट, दूसरा 4 लो सेकंड शिफ्ट, तीसरा 4 लो थर्ड शिफ्ट, फोर्थ 4 लो फोर्थ शिफ्ट। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 4 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ 4, ਤੀਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ 4, चौथी शिफ्ट में 4। परमेश्वर का कलीसिया जरूर जाग रहना चाहिए। आपको विरोध, आपका परिवार का विरोध, बच्चे के विरोध, कलीसिया के विरोध, शत्रु ने 4 लोगों खड़ा होकर काम करते जा रहे हैं। ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। बंधन में पड़ते जा रहे हैं। ਉਹ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। आज भी परमेश्वर हाथ से हम झेप पाना चाहिए। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। निंदा आने से, वो कदम होने से अवमान आ जाते हैं। ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਆ उसके ਜਾਂਦੀ है। बाद दिल के अंदर घबराहट आ जाते हैं। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਆ वो ਜਾਂਦੀ कदम ਹੈ। होने से अगले हफ्ते बीमारी आ जाते हैं। ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ उसके ਹੈ। बाद वो कदम होने से उसके अगले हफ्ते डर आ जाते हैं। ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ अगले हफ्ते डर आ ਜਾਂਦਾ उसके बाद समाधान नष्ट हो जाते हैं। है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ देखो है। साल में 365 डेज 4 सिपाही लोग क्या करते हैं? 4 लोग आके शिफ्ट करके हमको नाश कर लेते हैं। ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 365 ਦਿਨ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। 6 हम क्या पढ़ते हैं? 6ਵਾਂ से ਕੀ पढ़ते एक हैं? पत्रस को पकड़कर ਉਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ चैन में डाल दिया था, चंगल में बांध के रखा था। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। हालेलुया। धीरे धीरे काम करके लास्ट में जेल में लेके चले गए, बाद में बंधन में डाल दिया था। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। दोनों हाथ में बड़ी चैन डाल के बांध लिया था। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ ये चंगल किसको देखा ਇਹ थे? ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਲ ਜਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ मन की ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? व्याकुल को देखा थे। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨੂੰ मन ਦਿਖਾਉਂਦੀ की ਹੈ। उदास को देखा ਇਹ थे। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ परमेश्वर ਦਿਖਾਉਂਦੀ नाम की स्तुति हो। ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ कलीसिया के लोग, ज्यादा लोग मन की व्याकुल के साथ, कष्ट के साथ आ गया। जिंदा परमेश्वर बोल रहे, आज आपकी जीवित प्रार्थना के द्वारा मैं छुड़ा के भेजूंगा। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। आपके अंदर मन की व्याकुल किस तरफ से आ जाते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? मैं 6 प्रकार को बात को मैं आपके सामने रखूंगा। ਮੈਂ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। मन की व्याकुल, मन की उदास किसके लिए आ जाते हैं? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। फर्स्ट बात, हम क्या सोचते हैं वो हमको नहीं मिलते, वो इच्छा पूरा नहीं होते,
इसके कारण उदास पड़ जाते हैं। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। दोबारा मैं बताऊंगा। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, हम मन में कुछ बात की इच्छा करते हैं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ मन ਇੱਛਾ में ਕਰਦੇ कुछ ਹਾਂ, बात को हम सोच लेते हैं, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚਦੇ नहीं ਹਾਂ, मिलने के समय बड़ा दुखी हो जाते हैं। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। इसके लिए आहाब के बारे में हम देख सकते हैं। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ पहला ਹਾਂ। राजा 21 अध्याय का 6 वचन में पढ़ सकते हैं। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 21 ਬਾਪ ਦਾ 6 ਵਚਨ। पहला राजा 21 अध्याय का 6 वचन। उसने कहा, कारण ये है कि मैं इसराइल नबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। अगले उसकी पत्नी इजेबेल ने उसे कहा, क्या तू इसराइल पर राज्य करता पंजाबी है? बाइबल है, पंजाबी बाइबल है किसी को? ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਬੋਤ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। उसके बाद क्या हो गया था? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਇਜ਼ੇਬेल ਨੇ ओके, दूसरा बाइबल में क्या लिखा था? ਤੁਝੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? उसके बाद दुखी होके गुस्सा होके जाके बेड में लेट गया बोल के लिखा ਉਸ ਤੋਂ था। ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਿਆ। ने उसकी हाथ से नापाल के हाथ से वो अंगूर का फूट को उठाने के लिए सोचा, लेकिन नहीं मिला। दुखी होके जाके बैठ गया था। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। सोचो आजकल आप किसके लिए दुखी हो रहे ज्यादा? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। खुदा ने मुझे उदास देते रहते, मैं प्रार्थना करते जाते हैं, मुझे मिलते नहीं है। इसके कारण ज्यादा विश्वासी लोग दुखी हो जाते हैं। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। इसलिए ऐसे 44 में हम क्या पढ़ते हैं? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਇਆ ਦੀ किताब 44 एक से की पढ़ते हैं। घराने लोगों, आप मेरी कारण मन की उदास हो गया क्या? ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे इज़राइल तू गला फाड़ के पुकार कि तू मेरे करके उदास होया है। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ क्योंकि करो। आप खुदा से प्रार्थना करते, खुदा ने आपको देते नहीं, इसके कारण ज्यादा दिल उदास हो जाते हैं। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। सच में मैं बोल रहे सही है? ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। हालेलुया। मैं क्या सोचा मुझे नहीं मिला, नहीं मिलने के कारण मैं उदास हो जाते हैं। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। हाँ सच है। हालेलुया। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। सबको ये प्रॉब्लम है, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ मुझे भी है, आपको भी है, क्योंकि हमारा दिल ऐसे ये सृष्टि किया था। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। लेकिन हम क्या करना चाहिए? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ अब ਚਾਹੀਦਾ? परमेश्वर से मांगने के पहले ये परमेश्वर को इच्छा है क्या, ये पहले हम सोचना चाहिए। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। बच्चे बार बार रोते रहते, मुझे आइसक्रीम लेके दे दो, आइसक्रीम लेके दे दो। ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ माता ਲੈ के पिता लोग, अयो मेरा बच्चे रो रहे, तुरंत लेके देते क्या? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। मार के चुंडिया मर गई, वो क्या हो जाएंगे, पूरा कोल्ड हो जाएंगे, पूरा सर्दी हो जाएंगे, अभी नहीं खाना चाहिए। ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਗੇ। माता पिता के हाथ में देने से समय पर वो लेके दे दूंगा। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ आज आप ये बंधन से बच गया क्या? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਧਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ खुदा ने आपके खुदा की नाम से आप उदास हो गया क्या? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਪਏ ਹੋ। पूरा परमेश्वर हाथ में समर्पण करो। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। क्यों आपकी मन आज खटवाहट में रहते हैं? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? क्यों आज आपकी मन आत्मा, आपकी आत्मा उदास हो गया था? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ? परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। आपको मिलने के बाद जरूर परमेश्वर हाथ में समर्पण करो। ठीक समय पर ठीक काम करने वाला परमेश्वर। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। नेक्स्ट हमारा मन किस बात के लिए उदास हो जाता है? ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? निर्गमन 13 अध्याय में देखने के समय हम ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 13 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ओवर वर्क, ज्यादा बर्डन, ज्यादा काम है। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੈ। पहला अध्याय का 13-14 वचन पढ़ेंगे। ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਉਹਦਾ 13 ਤੇ 14 निर्गमन ਵਚਨ। पहला अध्याय का 13-14 वचन। ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਉਹਦਾ 13 ਤੇ 14 ਵਚਨ।
इसराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे। निर्गमल 13 और 14 पहला अध्याय का 13-14 ਉਪਰੰਤ ਮਿਸਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇ ਕੜਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਟਹਿਲ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਗਾਰੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੜਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ खटुआ के समय बदल गया, मन उदास हो गया था। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ 24 ਗਿਆ घंटे ਸੀ काम करते करते उदास हो जाते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ परमेश्वर नाम के स्तुति। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ घर में भी आप लोग क्या करते हैं, काम करके करके थक जाते हैं। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ परमेश्वर नाम के स्तुति। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ सिस्टर्स लोग को क्या बोलते हैं, सिस्टर बिलीवर सिस्टर्स को पूछने से ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ 24 घंटे काम करते रहना चाहिए। 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ घर ਰਹਿਣਾ में काम है खत्म नहीं होते, करके करके थक के जाएंगे। ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ उसमें भी ਜਾਂਦੇ 3-4 लड़का होने से बस एक ही लड़की पूरा लड़का या पूरा पंगा बढ़ जाएंगे। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ 3-4 ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ परमेश्वर नाम के स्तुति। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ काम ਹੋਵੇ करने के कारण थक जाते, उदास हो जाते हैं। ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ लेकिन आप किसके लिए काम करते हैं? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ इस ਹਾਂ संसार के लोगों के आशीष के कारण बदलने के लिए आप काम करते जा रहे हैं। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ एक सुबह का समय में एक ही शब्द को बताएंगे, आप बीना तकने के लिए एक और काम है, वो परमेश्वर के काम नहीं करना चाहिए। ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ हफ्ता में एक बार परमेश्वर भवन में कष्ट उठाओ, 6 दिन आपको बिल्कुल हल्का हो जाएंगे। ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 6 ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਲੱਗੇਗਾ परमेश्वर नाम के स्तुति। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ आप ਤਾਰੀਫ परमेश्वर भवन में हल्का काम ढूंढने से, बाहर जाने से आपको पूरा पूरा बोझ ज्यादा हो जाएंगे। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਲਕਾ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ काम करने के कारण अपने परिवार को आशीष के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी द्वारा आपके मन उदास हो गया था। ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ तीसरा हमारा मन किसके लिए उदास हो जाता है? ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पहला राजा में देखने के समय ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 19-14 वचन में क्या पढ़ते हैं? 19 ਬਾਪੂ ਦਾ 14 एलिया के बारे में हम देख सकते हैं। ਉੱਥੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ पहला राजा 19 अध्याय का 14 वचन। उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। मेरा प्राण को भी क्या करो, निकलो, मुझे बहुत उदास हो गया था। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹਾਂ परमेश्वर नाम के स्तुति। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ये ਹੈ एलिया किसके कारण उदास हो गया? ਇਹ ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ एसेबेल के कारण उदास हो गया। ਉਹ ਇਜ਼ੇਬेल ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ एसेबेल मतलब क्या था? ਇਜ਼ੇਬेल ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ अलग अलग रीति से हमको प्रॉब्लम को लेके आने वाला। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एलिया ਆਉਂਦਾ पवित्र इंसान था, ਏਲੀਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ फिर भी ये एसेबेल ने छोड़ा नहीं। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ੇਬेल ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ मार डालने के लिए कोशिश करते जा रहे, कोशिश करते जा रहे। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ तूने ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ पवित्रता, तूने खुदा के ऊपर विश्वास करते थे, प्रार्थना करते थे, फिर भी ये शत्रु आपको नहीं छोड़ते। ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੈਰੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ एक घर में विस्टी गया था, ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਗਿਆ उसके किसी मुंह से भी ब्रदर आप ठीक है पूछने की उसको टाइम नहीं है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ एक इंसान आएंगे, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਵੇਗਾ मेरे लिए मेरा परिवार ऐसे काम है, बिजनेस, इसके लिए प्रार्थना करो। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦੁਆ दूसरा ਕਰਨਾ आएंगे, ਦੂਜਾ ਆਵੇਗਾ मेरा पढ़ाई है उसके लिए प्रार्थना करो। ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁਆ तीसरा ਕਰੋ आएंगे। ਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ इस तरफ से प्रॉब्लम चल रहा, प्रार्थना करो। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ एक ही घर में अलग अलग शत्रु काम करते जा रहे हैं। ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ आप चिंता मत करो, एक चैन को, एक जंगल को आज परमेश्वर ने तोड़ने के लिए चाहते हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਜੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਗਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ तोड़ के जा रहे थे। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ कोई भी खाना देने के कोई नहीं,
कोई खाना देने वास्ते नहीं, भूख हो जाते हैं, भुख लगती है, परमेश्वर उस जंगल में भी खाना दे देते पर हैं। परमेश्वर जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ। दूसरा दिन शैतान आ जाते हैं, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ये ਹੈ, तोड़ के जाते हैं, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੜ भूख ਦਿੰਦਾ लग ਹੈ, जाते हैं, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, खाना नहीं मिलते, ਖਾਣਾ नहीं मिलता, दूसरा दिन भी परमेश्वर खाना दे फिर देते हैं। परमेश्वर दूसरे दिन भी खाना देता है। आपको भी परमेश्वर ऐसे हर दिन चलाते जा रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ भी परमेश्वर आखिर तक इस तरह चलाता है। प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे, फिर भी हर दिन आपको क्या जरूरत है सब कुछ दे के जा रहे थे। समस्या ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसके बीच में आप क्या करना चाहिए? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? परमेश्वर हाजिरी में तोड़ के आना चाहिए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ क्योंकि परमेश्वर की हाजिरी में आपको हर एक भूख प्यास को सब कुछ दे सकते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। आप लोग परमेश्वर हाजिरी को कितना हफ्ता में कितना बार जाते हैं? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? परमेश्वर ने आपकी स्तुति बाबू, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ। परमेश्वर भवन से जाएंगे लेकिन अंदर नहीं आएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। आज एक मन में सोचो, मैं हाजिरी को तोड़ तोड़ के चले जाऊंगा। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ चौथा, हमारा मन किसके लिए उदास हो जाता है? तो चौथा साडा मन किस वास्ते उदास होता है? नीति वचन 11 अध्याय के 12, जो तीसरा अध्याय के 11-12 वचन। कहावतां दी किताब 3 बाप दा 11 ते 12 ਵਿੱਚ। नीति वचन तीसरा अध्याय का 11-12 2 वचन पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। परमेश्वर नाम के स्तुति। परमेश्वर की तारीफ। कुछ लोग शिक्षा से मन उदास हो जाते हैं, कुछ लोग ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। डांट खाने से मन उदास हो जाते हैं। ਜਦੋਂ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मुझे भी, आप भी, सबको ये प्रॉब्लम है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। परमेश्वर नाम के स्तुति। परमेश्वर की तारीफ। लेकिन ये यहोवा क्या बोल रहे हैं? ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? मैं डांटने से अंत में आशीष के समान बदलूंगा। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। हालेलुया। आपका बीमारी है, एक और शिक्षा है। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। आपका घर में कुछ छोटा प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए आप डरना नहीं, घबराहट नहीं होना चाहिए। जस्ट आपके लिए कुछ शिक्षा है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। मन उदास होकर नहीं बैठना चाहिए। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। भलाई काम करने से कितना तारीफ करते, प्रेसिडेंट बोलते हैं। ਜਦੋਂ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ छोटा प्रेसिडेंट दुखी, बोलते हैं। छोटा डांट को, छोटा शिक्षा होने से हम तो सहन नहीं हो सकते ਪਰ हैं। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਹਿਨ नहीं लेकिन ਹੁੰਦਾ। यहोवा ने हमको डांटना चाहिए, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यहोवा ने हमको शिक्षा देना चाहिए। ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आज परमेश्वर दिया हर एक शिक्षा के लिए हम तारीफ करेंगे। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ भलाई ਕਰਾਂਗੇ। को कैसे शुक्रगुजारी से तारीफ करते। ये हफ्ता, ये महीना का लास्ट हफ्ता में परमेश्वर ने मुझे दिया हर एक शिक्षा के लिए मैं तारीफ करूंगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆਰਾ- ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ सब ਕਰਾਂਗੇ। लोग पूरी मन के साथ तारीफ करेंगे। ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ देखो, ਤਾਰੀਫ आप ਕਰਾਂਗੇ। भी हर एक शिक्षा के लिए धन्यवाद ਪਰਮੇਸ਼ਰ ने परमेश्वर। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ पूरी ਤਾਰੀਫ दिल से ਕਰਾਂਗੇ। सब मिलकर तारीफ करेंगे। ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। कोई भी भाव में पड़ जाते हैं, कोई भी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ कोई ਹੈ, भी कमजोरी में पड़ जाते कोई हैं, भी कमजोरी 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ इसके है, लिए कुछ शिक्षा परमेश्वर डांट खाना चाहिए। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਂਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ अब ਹੈ। सब मिलकर पूरी दिल से तारीफ करेंगे। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। शिक्षा को ई आराधना में परमेश्वर आशीष के समान बदल के देना चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ पूरी ਚਾਹੀਦਾ दिल ਹੈ। के द्वारा तारीफ करेंगे, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ सिर की ਤਾਰੀਫ उच्चा ਕਰਾਂਗੇ। करके तारीफ करेंगे। और किस तरह ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। हिंदी बुक में का ऐसे तो गीत है था, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, आ जाओ बोल के बुलाते यीशु। ਅਤੇ ਯीशु ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਓ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। आप पाओ के लिए डरना नहीं, यीशु के पीछे आ जाओ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯीशु ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ। शिक्षा को देख के बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। पापों तले दबतर क्यों रगे गो, पापों तले अब दर क्यों रगे गो, यीशु बुलाता डर क्यों रगे गो, यीशु बुलाता डर क्यों रगे गो,
आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, माताओ, आ भी जाओ, सो जाए सुहावो, जीवन नया पावो, सो जाए सुहावो, जीवन नया पावो, यीशु दाता गारा तेरी रगा, यीशु प्यारा तारने वाला तेरे नाम। उसमें एक और नहीं था, पाक आवो क्या करना, आ जाओ पाक आवो, आप भी आ जाओ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋ। कोई भी बीमारी के लिए, शिक्षा के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आ जाओ पाकावो, आ जाओ पाकावो, आ भी जाओ, सो जाए सुहावो, जीवन नया पाओ, सो जाए सुहावो, जीवन नया पाओ, यीशु प्यारा तारे निहारा तेरे रहा। यीशु प्यारा, यीशु प्यारा है, सब लोग बोलो तारे निहारा तेरे हालेलुया। यीशु प्यारा इंसान नहीं है, यीशु महा प्यार है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। डांट के पीछे नहीं हटना चाहिए। डांट खा के पीछे नहीं हटना चाहिए। 14 किस बात के लिए हमारे दिल उदास हो जाते, पांचवा पंजवा सानू किस गल दे लिए साडा जेड़ा दिल उदास होंदा है। परमेश्वर को व्यवस्था को ओबे नहीं करने से ने जिंदगी पूरा उदास में रहना चाहिए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, पूरी जिंदगी उदासी से अगर निकलती। बेचने वाला में 90% ये व्यवस्था को ओबे नहीं करते। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। deuteronomy 28 का 65 वचन पढ़ेंगे। ਵਿਵਸਥਾ ਸਰ 28 का 65, 28 ਬਾਪੂ ਦਾ 65 ਵਿੱਚ व्यवस्था 28 का 65 पढ़ेंगे। व्यवस्था 28 अध्याय का 65। ਵਿਵਸਥਾ ਸਰ 28 ਬਾਪੂ ਦਾ 65 वचन। और उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा और ना तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कामता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा। मन व्याकुल रहेगी। ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਜਾਂ ਕੰਬਲ हालेलुया। किसके लिए मन व्याकुल हो जाता है? ਕਿਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? व्यवस्था में नहीं चलने के क्योंकि कारण। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। आपके लिए अच्छा कलीसिया देखे, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇਖੇ, आपके लिए अच्छा व्यवस्था देखे, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਯਮ ਦੇਖੇ, अच्छा सेवादार देखे, ਚੰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ अच्छा ਦੇਖੇ, बिल्डिंग देखे। ਚੰਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੇ। व्यवस्था में चलो बोलने से हम नहीं चलते। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ इस अध्याय ਚੱਲਦੇ। में 15 वचन में हम पढ़ के घर में जाके पढ़ के देखो, इस व्यवस्था को नहीं मांगने से ये शराब पड़ जाएंगे। ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 15 ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ज्यादा ਸ਼ਰਾਬ लोग ਹੋਵੇਗਾ। व्यवस्था के बारे में पता नहीं चलते। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। पूरी कलीसिया व्यवस्था के ऊपर बनना चाहिए। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿया ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿत ਹੈ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ इसलिए सेरुब्बाबेल के हाथ में एक 2 प्रकार की रस्सी था, उसको देख के परमेश्वर बहुत खुशी हो गया था। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਰੂਬਾਬੇਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। आप कलीसिया को व्यवस्था को आगे नहीं मांगने से ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ अपना दिल पूरे जाति के बीच में आपको तसल्ली नहीं मिलेगा। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। बिल्कुल तसल्ली नहीं। कितना तारीफ करो, कितना प्रार्थना करो, कितना सेवा करो, कितनी अपने बना दो, तसल्ली बिल्कुल नहीं मिलेगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। आपको पाव खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। इसका मतलब क्या था? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?
कभी भी आपको तसल्ली के द्वारा एक स्टैंड होके खड़ा होने के लिए बल नहीं मिलेगा, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, क्योंकि आपके अंदर व्यवस्था है ही नहीं। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ परमेश्वर को नियम के अनुसार चलते नहीं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, हृदय तड़पते रहेंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਕੰਬਦਾ ਰਹੇਗਾ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। इसमें लिखा था आपकी आंख हमेशा टायर्ड में सोने की आंख के समान रहेंगे, दुख चेहरा को देखने से पता नहीं, हमेशा दिल तड़पते रहेंगे, आंख पूरा ऐसे सोने के समान लगेंगे। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਮਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ लगेगा ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ नेक्स्ट ਹੋ। मन की दुख हो जाएंगे। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। अगले वचन में क्या लिखा 66 में, अपने जीवन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आत्मा क्या, पैसे क्या, कहीं परमेश्वर का भवन क्या, आप आने वाला रास्ता में कहां पहुंचेंगे, इसके बारे में भरोसा नहीं है। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ नहीं ये ਰਹੇਗਾ। 5 प्रकार रीति से हमारा दिल में उदास हो जाता है। ਪੰਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਆਈ। मैं दोबारा ये 5 बात को दोबारा बताएंगे। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ अपना ਦੱਸਾਂਗਾ। इच्छा पूरा नहीं होने के कारण दिल उदास हो जाते हैं। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ हम ਹੈ ओवरलोड ओवर वर्क है, इसके कारण हमारा दिल उदास हो जाता है। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀ अलग ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अलग शोधना के द्वारा, निंदा के द्वारा हमारा दिल उदास हो जाता है। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। डांट खाने के कारण, शिक्षा में पढ़ने के कारण उदास हो जाते हैं। ਜਦੋਂ ਡਾਂਟ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। व्यवस्था को आगे नहीं मांगने से पक्का उदास हो जाते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ परमेश्वर ਹਾਂ। नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ। एक चेन में पतरस को बांध के रख दिया था। ਇਸੇ ਜੰਜੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ इन ਸੀ। लोगों ने क्या किया था, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ अब ਕੀਤਾ? दोबारा प्रेरित के कम 12 अध्याय में वापस आ जाए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 12 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। 5वां वचन पढ़ेंगे। 5 वचन पढ़ांगे। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना किया था। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿया ਉਸ ਵਾਸਤੇ लॉलिन होके परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ दुआ कर रही ਸੀ। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? किस तरह दुआ करनी चाहिए है? झगड़ा करके प्रार्थना कर, लड़के प्रार्थना करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ लड़के चाहिए। प्रार्थना करने के मतलब क्या था? ਲੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? याकूब के पुत्री 5 अध्याय के 16 वचन में पढ़ने के समय, याकूब ਦੀ पत्री 5वां पद 16 वचन ਚ पढ़ने याकूब के समय पुत्री 5 अध्याय के अभी ध्यान से सुनो, लड़के कैसे प्रार्थना करना, उसकी बात ये बंधन कैसे खुल जाएंगे। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਧਨ अभी ਖੁੱਲ तक ਜਾਣਗੇ। आप बंधन में पड़ा, अभी कैसे खुल जाएंगे। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। अपने अपने भाव को अंगीकार करके, इग्नोर करके हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ चाहिए। एक बहू को, उसकी बहू को, दूसरा क्या, मदर इन लॉ, दोनों के बीच में एक और पंचायत हो गया था। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸ ਅਤੇ ਬਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ की तारीफ हो। सारे सेटलमेंट हो गया, सब कुछ इस तरह दोनों को समाधान कर दिया था। दोनों की शांति कर उसके दी बाद गई। प्रार्थना करो बोला था। उसके बाद उन्होंने क्या कि दुआ करो। एक दमा ने क्या, कैसे प्रार्थना करते हैं, मदर इन लॉ की क्या बोलते हैं, उसकी सास ਜਿਹੜੀ सास किस तरह ने दुआ कैसे प्रार्थना करते हैं? ਉਹਦੀ सास किस तरह दुआ कर रही है? प्यारे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर। एक ही सबसे प्यारे परमेश्वर। एक ही शब्द प्यारे परमेश्वर। उसके बाद इसको बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो, इसको अक्ल दे दो परमेश्वर। एक ही सबसे प्यारे परमेश्वर, दूसरा दोबारा दोष लगाते प्रार्थना करते हैं। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ धर्मी हैं। लोग के समान हमारा प्रार्थना होना चाहिए। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। धर्मी लोग की प्रार्थना मतलब क्या था? ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? लड़के प्रार्थना करना मतलब पाव को इग्नोर करके एक लोग दूसरे लोग को क्षमा करके प्रार्थना करना ਅਸੀਂ चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ पर ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। धर्मी लोग की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। क्योंकि धर्मी जन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। हालेलुया।
धर्मी लोग का प्रार्थना मतलब क्या, वो कैसे रहते हैं? ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? लूका 18 अध्याय में आने के समय ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 18 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 13 14 वचन में इन धर्मी लोग की प्रार्थना को देख सकते हैं। 13 ਤੇ 14 ਵਚਨ 'ਚ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। लूका 18 अध्याय का 13 14 वचन। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़ी होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वे दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। बड़ा बनाने वाला घर परमेश्वर के सामने जरूर छोटा हो जाएंगे। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ये ਜਾਵੇਗਾ। क्या बोल के प्रार्थना कर रहे हैं? स्वर्ग को अपने सिर को भी ऊंचा नहीं करने की इसको शर्म होते हैं। परमेश्वर में कितनी बड़े पापी है, मुझे दया करके माफ कर दो परमेश्वर। ਇਹ ਮਸੂਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ हे परमेश्वर मैं पापी ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की ये तारीफ हो। परिचय क्या बोल के प्रार्थना कर रहे हैं? पर ਇਹ फरीसी ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? मैंने परमेश्वर भवन में दसम सन देता हूँ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, मैंने 3 बार 4 बार उपवास लेता हूँ, ਮੈਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 3-4 ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ मैं ਹਾਂ, हर बात में हर प्रार्थना में वफादार से रहता हूँ, ਮੈਂ ਹਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, मैंने ठीक रहता हूँ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ऐसे बोल के ये प्रार्थना कर रहे हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਦੁਆ उसको ਕਰਦਾ। प्रार्थना को उठा के परमेश्वर ने फेंक दिया था। ਉਸ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। लेकिन दूसरी प्रार्थना कैसे किया? ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अपने ਕੀਤੀ? सिर को स्वर्ग में देखने की छोड़ दिया था। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਾ यीशु ਚਾਹਿਆ। मैंने कितनी बड़ा पापी है परमेश्वर। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। उसकी दिल कितनी टूट जाते हैं। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ। दिल तोड़ के धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਹਨ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਆ और ਕਰਦੇ 15 मिनट में हम भी धर्मी का प्रार्थना करना चाहिए। ਅਤੇ ਹੋਰ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਵਾਂਗੂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। दिल तोड़ के दुआ करना चाहिए। ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। करमेल पर्वत में एक और प्रार्थना हो गया था। ਕਰਮੇਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। पहला राजा में देखने के समय ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ अध्याय में क्या लिखा था? 18 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 42 वचन में वो कैसे प्रार्थना किया? अब 42 वचन से किस तरह दुआ की? उसने किस तरह पहला दुआ की राजा थी? 18 अध्याय के 42 वचन सारे खोल के देखा कैसे प्रार्थना किया। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। भूमि पर गिरकर अपने मुंह को क्या कर दिया? नीचे कर दिया था। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਆ। हालेलुया। इस तरफ से हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। इस तरह से परमेश्वर के दुआ करनी चाहिए। मुस्लिम लोग को देखने से कैसे करते? 3 बार ऐसे ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? 3 ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। आप कितनी बार सिर को नीचे डालते हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ऐसे बॉडी पूरा क्या होना चाहिए? राउंड वो शेप में होना चाहिए। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ फुल बेंड होना, सिर नीचे जाना। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये धर्मी लोग की प्रार्थना। ਇਹੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆ। आज ऐसे ही प्रार्थना किया था। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ इसके ਸੀ कान में सुनाई दे रहे बारिश आ रहे हैं। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ये ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ बारिश ਕਿ के लिए ਬਾਰਿਸ਼ ਆ दुआ ਰਹੀ ਹੈ किया, बारिश शुरू हो गया था। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ आज भी आपकी घर में होने वाला हर एक बंधन को ये धर्मी को प्रार्थना टूट जाएगी। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਮੀ ਦੀ ਦੁਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। एक इंसान ऐसे बता रहते हैं ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ कि ਹੈ परमेश्वर का प्रार्थना कैसे था? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ घर ਸੀ में काम करने वाला नौकर रानी के समान है। ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। हर एक काम में खुशी हो जाता है। प्रार्थना आने से क्या करते हैं? उसको हमारा दिल नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, मुंह नहीं खोलूंगा, धक्का मारना पड़ेगा, ऐसे बैठ जाएंगे। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ये ਰਹੇਗੀ। प्रार्थना करने के बाद क्या हो गया था? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? प्रेरित के काम 12 अध्याय का 7वां वचन में पढ़ते स्वर्गदूत ने उतर के पतरस के पास आ गया था। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾ 12 ਬਾਪ ਦੇ 7 ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ स्वर्ग उतर के आज पतरस के कोल आप आया। ऐसे प्रार्थना करो, ये परमेश्वर की हाजिरी में
जरूर स्वर्गदूत आ जाएंगे। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ स्वर्गदूत उतर के आ जाएं। बाइबल में कुछ लोग को स्वर्गदूत को बेच के छुड़ाया बोल के हम देख सकते हैं। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ स्वर्गदूत ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ अभी ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ। समय नहीं है, मैं वचन बोलूंगा, आप नोट करके रखना चाहिए। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। गिनती 20 अध्याय के 16 वचन में इसराइल लोगों को परमेश्वर ने स्वर्गदूत को लेकर इजिप्ट मिस्र से छुड़ा दिया था। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20 ਬਾਪ ਦੇ 16 ਵਚਨ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ स्वर्गदूत ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸੀ। निर्गमन 33 का दूसरा वचन में ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 33 ਬਾਪ ਦੇ 2 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर नाम के स्तुतिवाम ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ये ਕਰੋ लोगों के कानान देश में लेके चलेगा बोल के देख सकते हैं। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। निर्गमन 23 का 20 वचन में ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 23 ਬਾਪ ਦਾ 20 वचन आपका हर एक रास्ता में स्वर्गदूत आगे जाएंगे बोल के देख सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। दानिएल के पुस्तक में शाद्रक मेशक आबेदनेगो को उसकी पट्टी में डालने के समय उसकी साथ स्वर्गदूत आके छुड़ाया था। ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ मरिया ने यीशु को जी उठने वाला परमेश्वर को देखने के लिए बड़ा पत्थर रुकावट था, स्वर्गदूत आके पत्थर को शहीद कर दिया था। ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ, स्वर्गदूत ने आके उस पत्थर को हटा दिया। हाजिरी में स्वर्गदूत हमारा प्रार्थना के अंदर उतर के आना चाहिए। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦੂਤ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उसके बाद क्या हो गया था? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? उस कमरा में ज्योत दिया गया था, ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, अंधेरा पूरा बाहर चलेगा था। ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। इस बात को भी हम प्रैक्टिकल में लेके आना चाहिए। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ प्रैक्टिकल ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ये ਚਾਹੀਦਾ। प्रार्थना के द्वारा धर्मी लोग के प्रार्थना के द्वारा आज बंधन कलीसिया में छह के साथ आवाज, आज बंधन तोड़ के छह आवाज आ जाएंगे। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਤਹ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ पहला ਤਾਰੀਫ। पत्रस दूसरा अध्याय के 9 वचन में परमेश्वर ने ज्योत दिए बोल के लिखा था। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਬਾਬ ਦੇ 9 वचन से ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कि परमेश्वर मेरा चानन है। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। ज्योत आने से अभिषेक आ जाएंगे। जब एक चानन आवेगा तो एक मसा आ जाएगा। एक प्रार्थना के द्वारा ज्योति अंदर आएंगे, स्वर्गदूत आएंगे, अभिषेक ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अते इस दुआ दे राही जब एक चानन आवेगा, स्वर्गदूत अंदर आवेगा तो ऑटोमेटिक जना परमेश्वर का मसा आ जाएगा। बजा के पढ़िए, परमेश्वर से अन्य भाषा में बात करेंगे। असि जना परमेश्वर जना गैर जुबान दे गल करांगे। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। उस याकूब का पुस्तक पुत्री पहला अध्याय के 17 वचन में क्या पढ़ते हैं? याकूब की पत्री दे पहले बाप दे 17 वचन से की पढ़ते पिता हैं? ज्योति है, पिता ज्योति, पिता जने एक चानन है। परमेश्वर नाम की स्तुति परमेश्वर हो। की तारीफ। योना पुस्तक में भी, योना पहला अध्याय में भी हम देख सकते हैं। योना जी पहले बाप से इस तरह बारे पढ़ ये सकते हैं। ज्योति हमारा बीच में पवित्र आत्मा का शक्ति आना चाहिए। अते ये जरा चानन है पवित्र आत्मा की सामर्थ साडे विचकार आनी चाहिए। उसके बाद क्या हो गया था? उस तो बाद की होया? प्रार्थना हो गया। दुआ होगी। प्रार्थना होने के बाद क्या होगा था? दुआ होने तो बाद की होया? स्वर्गदूत आ गया था। स्वर्गदूत आया। हालेलुया, ध्यान से सुनो। प्रार्थना हो गया, दुआ हुई, स्वर्गदूत आ गया, स्वर्गदूत आ गया, ज्योति भी आ गया, चानन भी हो फिर गया, भी पतरस सोते रहे थे। फिर भी पतरस सो रहा है। पतरस क्या किया था? पतरस ने की कीता? वो वचन पढ़ेंगे, मुझे हिंदी में नहीं आता। बिलाम में टच करके उठा दिया। कौन सा वचन? 12 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा। पसली पर हाथ लगा दिया था। अते उसने पतरस की वक्की दे विच हाथ ए मारा। पतरस उठ जा, उसने क्या कि ये पतरस सो मैंने जा। आपके सामने आ गया था। अते मैं तेरे सामने आ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। पसली पर हाथ लगा के परमेश्वर हमको जय देने वाला अते परमेश्वर। उसने वक्की के हाथ लगा के परमेश्वर उसको जय देने वाला है। किसको देखा था? एक इसमें दिखाता योना है। 16 अध्याय में देखने के समय हम यूनाइटेड जी 16 बाब से पढ़ते 8 हैं। से 10 तक घर में जाके पढ़ के देखो। आज इस 10 जरा अध्याय तो से घर में जाके पवित्र पढ़ के आत्मा देखो। आपके अंदर आने के समय हम जरा पवित्र आत्मा तोड़े अंदर आवेगा। पाव को भी, धर्मी को बात को भी आपको डांट के, मार के, ठीक रीति से सिखाएंगे। अते पापी होवे चाहे धर्मी होवे उसको डांट के मार के सही तरीके से उन्हें गल्लां सिखावेगा। हालेलुया, परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। ये उठ गया था। ये उठ गया। उठने के बाद स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं? उठने तो बाद स्वर्गदूत ने की किया? अपनी कंबर बांध लो। अते उसने क्या कि तो अपनी जेल जड़ी में कमर जाने बांध से ले। नंगा रहना चाहिए, कुछ भी आशीष नहीं मिलेंगे। अते जेकर वो जेल दे विच जान दे नाल नंगा रहना पवेगा, कोई बरकत नहीं मिलेगी। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। कंबर बांध लो, उसने क्या कि तो अपना लक बांध ले। अच्छा बेल्ट बांधो,
अपने ਲੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਨ ਲੈ ये बेल्ट में ये अच्छा क्या करते थे, आर्मी लोग पुलिस लोग क्या करते, बेल्ट में ये तलवार को रख लेते। ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਹਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ पहला पत्रस पहला जेकर 13 वचन में क्या लिखा था, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਦਾ 13 ਵਚਨ मन की खंबर को बांध लो। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਲੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਓ एक और बार सारे मिलकर ले लिया। छोटे से बड़े तक मन की खंबर को बांधना चाहिए। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ਅਗਲਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ चप्पल डालो, चप्पल नहीं है चप्पल डालो। ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ आज एक एक बात को अब डाल के आना चाहिए। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ये ਚਾਹੀਦਾ चप्पल मतलब किसको दिखाते हैं, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ समाधान को बोलने वाला सुविशेष समाचार को दिखाते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ इफिसियों 6:15 वचन में देख सकते हैं। ਅਫਸਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 6 ਬਾਪ ਦੇ 15 ਵਚਨ ਚ ਦੱਸਿਆ चप्पल डालो, आपकी पाँव नंगा में है, चप्पल डाल दो। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋ परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ चप्पल डालने के बाद क्या बोल रहे हैं, ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ वस्त्र डालो। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ इसका ਕੱਪੜੇ मतलब ਪਾ क्या था, शैतान बंधन में रहने से वस्त्र भी नहीं है, नंगा के समान था। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇ ਸੀ अच्छा धर्मी का प्रार्थना था, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮੀ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ लड़के प्रार्थना था, ਲੜਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ स्वर्गदूत आ गया था, ਸਰਗਦੂਤ ਆ ਗਿਆ ज्योति आ गया था। ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ज्योति आने के बाद बोल रहे था, उठ के खड़ा हो जा बोल रहे। ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ खड़ा होने के बाद क्या बोल रहा, अपनी खंबर मन को बांध लो, मन में कुछ बात बोलो, मैं खुदा के लिए आज ये काम करूंगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ उसके बाद वस्त्र को पहन लो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ ये वस्त्र किसको देखा थे, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ? छोटे लोग संडे स्कूल बच्चे तक, बच्चे से लेकर बड़े लोग तक ये वस्त्र, स्तुति का वस्त्र, हर एक मुंह आज अभी स्तुति करना चाहिए। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ उसके ਕਰੋ। बाद स्वर्गदूत ने क्या बोल रहे हैं, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜੋਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ मेरे ਹੈ? पीछे आ जाओ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ये पीछे जा रहे हैं। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ पीछे जाने के समय क्या था, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ पहला सिक्योरिटी का रब, पहला सिक्योरिटी सो गया, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ ਸੋ ਗਿਆ दूसरा सिक्योरिटी सो गया, ਦੂਜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੋ तीसरा ਗਿਆ सिक्योरिटी सो गया था, ਤੀਜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਸੋ ਗਿਆ लास्ट में जाके एक और गेट के पास खड़ा हो गया था। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ लोहा की गेट के पास खड़ा हो गया। ਅਤੇ ਯੋਬ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ 10वां वचन पढ़ेंगे, 10 वचन पढ़ा 10वां वचन कोई। तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप खुल गया और वे निकलकर एक ही अपने अपने खुद खुल गया था, कोई भी नहीं खोला था। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਾਟਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸਨ लोहे के फाटक, आज आपके घर में कौन सी आशीष को रुकावट डालते, लोहे के फाटक जरूर ये प्रार्थना के द्वारा खोलना चाहिए। ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ परमेश्वर हाथ में समर्पण करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ अभी से मेरा प्रचार को मैं खत्म कर लेते हैं। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ परमेश्वर ने खत्म करता हूं। पूर्ण रीति से छुटकारा दे के लेके गया था। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ परमेश्वर ने इस तरफ से आज हर एक येरोद की हाथ से छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੈਰੋਦੀਸ ਦੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ अभी ਹੈ हम गीत नहीं गाएंगे, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ परमेश्वर हाथ में हम समर्पण तो करेंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ क्योंकि ਦਵਾਂਗੇ उसके लिए इधर आए हैं ना। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ खुदा ने मुझे कैसे छुड़ाऊंगा बोल के आया ना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ मेरी दिल की उदास को भी, आपकी दिल की उदास को भी परमेश्वर आज छुड़ाने के लिए जात रहे हैं। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ इस ਇੱਥੇ ਆਇਆ शब्द को कितने लोग विश्वास करते हैं? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇਚਾ आपको ਕਰਦੇ ਹਨ विश्वास नहीं है, आप बाहर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खुदा ने पतरस को किस तरफ से छुड़ाया, ऐसे मुझे आज छुड़ाऊंगा। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ धर्मी ਹੈ लोग प्रार्थना शुरू करेंगे, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ यीशु ਕਰਾਂਗੇ मेरे अंदर कोई भी भलाई नहीं है यीशु परमेश्वर। मेरे अंदर कोई भी भलाई नहीं है घमंड लोग की सुबहों को छोड़कर यीशु के सामने घुटने में देखेंगे, ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੰਡੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ मैं ਟੇਕਾਂਗੇ कुछ भी नहीं है परमेश्वर। ਪਰਮੇਸ਼ਰ में कुछ भी नहीं है धर्मी लोग की प्रार्थना भी ऐसे होना चाहिए था। ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पापों ਹੋਣੀ को ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ इग्नोर करने का ला प्रार्थना करेंगे। ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ परमेश्वर आपको क्या करेंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ स्वर्गदूत का भी भेजेंगे।
स्वर्गदूतां ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ परमेश्वर का हजूरी में इधर लेके आएंगे। परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ इस ਆਏਗਾ स्वर्गदूत आने के बाद क्या आ जाएंगे? स्वर्गदूत आउਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ पीछे से ਹੋਵੇਗਾ एक और बड़ा ज्योति आ जाएंगे। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਆਵੇਗਾ ज्योति आने के बाद सारे अंधेरा दूर चले जाएंगे। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ज्योति ਹਨੇਰਾ आने ਮਿਟ के ਜਾਵੇਗਾ बाद आप चुपचाप रह सकते क्या? ਚਾਨਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ अच्छा ਹੋ परमेश्वर को धन्यवाद बोल सकते हैं। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ पवित्र ਕਰ आत्मा ਸਕਦੇ में दोबारा वापस पवित्र आत्मा में थाली बजा के पवित्र आत्मा में बरसत है। ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚ ਭਰ यीशु ਸਕਦੇ मुझे ਹੋ मदद करो परमेश्वर। यीशु तू मेरी सहायता इतने कर लोग धर्मी लोग को प्रार्थना के द्वारा छुड़ाने के लिए जाते रहे कितने हैं। लोग ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ आपके लिए वस्त्र मिल जाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਮਿਲਣਗੇ पैर में डालने के लिए चप्पल मिल जाएंगे, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਪਲ ਜੁੱਤੀ आपके ਮਿਲੇਗੀ सामने होने वाला लोहा के फाटक टूट ਤੁਹਾਡੇ जाएंगे। ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਟਕ ਟੁੱਟ सब ਜਾਣਗੇ लोग घुटने में खड़ा हो जाएंगे। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ किसी ਜਾਣਗੇ को एक दूसरी मुंह को देखने के समय नहीं है। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ खुदा ने आप मन में याद करके आना, मैं बोलते आएंगे आप मन में सोचते आना चाहिए। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ अपने दिल में धर्मी के समान अपनी पाव को इग्नोर करते जाओ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧਰਮੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ परमेश्वर मेरे लिए माफ कर दो ਪਰਮੇਸ਼ਰ परमेश्वर, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ मेरे लिए दया कर दो ਮੇਰੇ परमेश्वर, ਤੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ मेरी पाव को माफ करके हनकर दे दो ਮੇਰੇ परमेश्वर। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ मेरे अपनी कृपा पाप दे। ये परमेश्वर। हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ पतरस के सामने एक काम पहले हो गया था, पतरस कलीसिया के सामने- पूरा एक काम किया था। परमेश्वर पत्रस के सामने सबसे पहले यही काम हुआ इससे पूरी कलीसिया ने मिलकर यही काम किया वे बोलते जाएंगे, आप प्रार्थना करने की शुरू करो। मैं बोलता जावांगा तुसी दुआ करनी शुरू धर्मी को प्रार्थना के सुनने के समय आ गया था। धर्मियों ने दुआ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ परमेश्वर मुझे दया कर दो परमेश्वर। परमेश्वर तो मेरे पे दया कर दे प्रार्थना करते रहने के समय क्या हो जाएंगे? दुआ करते वेले की हो जाएगा स्वर्गदूत हमारा बीच में प्रकट हो जाएंगे। स्वर्गदूत ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ आपको छुड़ाने के लिए उठ के मार के उठा के लेके जाने के लिए स्वर्गदूत आ जाएंगे। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ स्वर्गदूत ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ परमेश्वर हाथ में समर्पण करेंगे, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ सब लोग प्रार्थना करेंगे। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ अपने बल कितना है पूरी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿया मिल के पूरे बल ये ਨਾਲ ਦੁਆ प्रार्थना ਕਰਾਂਗੇ को, ये आवाज को सुनने के लिए स्वर्गीय पिता हमारे बीच में है। इस आवाज को सुन लो स्वर्गीय पिता ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ है छोटे बच्चे प्रार्थना करो, छोटे बच्चे दुआ करो आपकी अंधेरा दूर जाने के लिए प्रार्थना करो। ਤੁਹਾਡਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ सच्चाई ਕਰੋ आत्मा हमारे बीच में आ जाएंगे। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ अभी ਆਵੇਗਾ शैतान आपके विरोध में दोष लगाएंगे, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ पूरे ਲਗਾਵੇਗਾ पवित्र आत्मा में भर के कोई भी फायदा नहीं है। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ परमेश्वर हाथ में समर्पण करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ जिसे प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना ਦੁਆ चाहिए। ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ आपकी मुंह की शेख एक शब्द को सुनने के लिए परमेश्वर रेडी है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਹੈ नहीं मैं प्रार्थना तो नहीं करूंगा, नहीं मैं दुआ तो नहीं मैं अलीम तो नहीं करूंगा, मैं अपने आप हलीमता नहीं कोई करूंगा बात नहीं। आपके लिए आज ये प्रार्थना में चुकर है या नहीं है? कोई गल नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ खाली नहीं आया खाली ही जाना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ आपको ਪਵੇਗਾ परमेश्वर को वचन के ऊपर होने से अभी तक आपकी मुंह चुपचाप नहीं रहते हैं। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ यीशु में धर्मी के समान दुआ करते परमेश्वर ਅਤੇ है। ਯीशु ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ कितनी बड़े बंधन है, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਧਨ ਹੋ कितनी बड़े मन की उदास है, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कितनी शत्रु ने मुझे बांध के रखा, ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ वो ਨੇ पीछे शैतान मेरे पीछे पड़ा था। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ आज हर एक बंधन को तोड़ने के लिए धर्मी लोग की प्रार्थना को सुन के इन्हें परमेश्वर आ गया था। ਅਤੇ ਆਰਿਆ ਹਰੇਕ ਜਨ ਦੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ अभी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ स्वर्गदूत ਹੈ आपके बीच में आएंगे। ਅਤੇ ਯीशु ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵੇਗਾ स्वर्गदूत आपके बीच में आने से कैसे चुपचाप रह सकते हैं? ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹੋਗੇ जो भी साथ में आ जाएंगे, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਵੀ ਆਵੇਗਾ अरे अंधेरा बाहर निकल जाएंगे। ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ आपकी प्रार्थना में जो भी अंदर आ जाएंगे, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ सभी मिलके दिल लगा के मन लगा के प्रार्थना करेंगे। ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ये शब्द परमेश्वर को पसंद नहीं है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ कैसे प्रार्थना करते वो लोग? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ दिल तोड़ के प्रार्थना किया था। ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ आज एक और पवित्रता है, कन्वेंशन का पहले एक और सर्टिफिकेशन हमारा बीच में होना चाहिए। ਅੱਜ सम्मेलन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ आपके अंदर दिल के अंदर एक बड़ी अनुग्रह मिलना चाहिए था। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ खाली हाथ में मैं जाना नहीं चाहते ਕੋਈ ਵੀ परमेश्वर। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵਾਪਸ नहीं जाना मेरा अंदर कितनी बुराई है परमेश्वर, परमेश्वर मेरे अंदर कितनी बुराई है लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कोई भी बदलावट है या नहीं है? परमेश्वर मेरे
ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ दूसरे लोग को मत देखो, आप अपने खुद देखो। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ छोटा बच्चे भी प्रार्थना करो। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਆ ए ਕਰੋ जवान, आप दूसरे लोग के सामने नहीं है, परमेश्वर के सामने अपने अपने समर्पण करो। ਇਹ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਅਰਪਣ ਕਰੋ उन्हें आपको प्यार कर लेते हैं, उन्हें आपको प्यार किया था। ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ शैतान बोलते ही प्रार्थना के लिए आप दूर है, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ लेकिन धर्मी लोग को प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। ਪਰ ਜੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ स्वर्गदूत आने के बाद ज्योति आ जाएंगे, ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਨਣ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ज्योति आने के बाद अभिषेक को उतर आ जाएंगे। ਚਾਨਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੱਸਾ ਆਵੇਗਾ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना ਦੁਆ करो। ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा अंधेरा से जाता उजाला होता अंधेरा चला जाता उजाला होता दिल में परमेश्वर की आत्मा ऋषि दिल में परमेश्वर सब बोलो, की प्रार्थना का मत आत्मा छोड़ो, ऋषि। किसी का मत देखो, अभिषेक अंधेरा छुटकारा चला जाता सही उजाला बात को ठाने को समय होता अंधेरा चला जाता उजाला होता दिल में परमेश्वर की आत्मा ऋषि दिल में परमेश्वर की आत्मा ऋषि अंधेरा चला जाता उजाला होता अंधेरा चला जाता उजाला होता दिल में परमेश्वर की आत्मा ऋषि दिल में परमेश्वर की आत्मा ऋषि अंधेरा चला जाता उजाला होता 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 आज वो अभिषेक में भर जाएगी। हालेलुया। अच्छा थाली बजा के पवित्र आत्मा में भरो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना में पसंद हो जाएंगे। संगीत और ताली बजा के तुसी आत्मा च भरो परमेश्वर तुम्हारे दुआ तो प्रसन्न होवेगा कितनी दिन हो गया आप ऐसे प्रार्थना करके, आते जितने भी तेरे रुकावटां ने सोच तरह तुसी दूर करो आपकी संगत के समय मुझे बुलाओ, अभी भी मुझे बुलाओ, मैं आपको छुड़ाऊंगा। आते परमेश्वर कहते हैं कि तुसी मैंने हुण भी सदो मैं तो आके छुड़ावांगा दिल की परमेश्वर की आत्मा आने से, दिल में परमेश्वर की सभी आत्मा बोलो, आने से आत्मा दूर जाना चाहिए। अंधेरा चला जाता उजाला होता अंधेरा चला जाता उजाला होता दिल में परमेश्वर की आत्मा आने से दिल में परमेश्वर की आत्मा आने से अंधेरा चला जाता उजाला होता अंधेरा चला जाता उजाला होता दिल में परमेश्वर की आत्मा आने से दिल में परमेश्वर की आत्मा आने से अंधेरा चला जाता उजाला होता 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 एक इमेजिनेशन करेंगे, एक इमेजिनेशन कल्पना करेंगे। ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ज्योति पास में आ गया, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਆਇਆ ਹੈ अंधेरा दूर चले जा रहे हैं। ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ आपके लिए कुछ चप्पल मिल गया था, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ सुविशेष से समाचार मिल गया था, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਸਮਾचार मिल गया पवित्र सच्चाई मिल गया था। पवित्र सच्चाई मिली है स्वर्गदूत ने आपके हाथ में दे रहे हैं, स्वर्ग तुम्हारे हाथ में दे रहा है आप दोनों हाथ उठा के ए पिता धन्यवाद बोल के ले रहे हैं। तुसी दोनों हाथ फैला के ही पिता तुम धन्यवाद करके ले रहे हो ये कल्पना दुनिया में चले जाना। ये जेडी कल्पना दुनिया में चली जाएगी स्वर्गदूत आपके हाथ में पवित्र वचन को दे रहे हैं, और स्वर्ग तुम्हारे हाथ में पवित्र वचन अपने वो वचन को खुशी के साथ ले रहे उस हैं। वचन को तुसी खुशी ना ले रहे हो परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर वचन तुम्हें छुटकारा देना चाहता है आपके लिए एक और वस्त्र भी मिल जाएंगे। साडे वास्ते एक वस्त्र मिल जाएगा ऐसे स्तुति करके बहुत दिन हो गया था, और इस तारीफ भी बहुत
वचन होंगे सभी ऐसे स्तुति करेंगे। इस तरह से तारीफ करांगे। तू स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं? अति ईश्वर शब्द स्वर्गदूत की कह रहे मेरी हैं। पीछे आ जाओ, मेरी वो पीछे आ कहते हैं, मेरे जाओ। पीछे आ जा। फाटक में जाके खड़ा हो गया था, अति फाटक में जाकर खड़ा हो वो गया। फाटक खुद खोल गया था। फाटक अपने आप खुल गए। आपकी बिजनेस के विरोध में, आज सारे व्यापार के विरुद्ध आपके में, परिवार के विरोध सारे में, परिवार के विरुद्ध आपके में, आत्मिक के जीवन के विरोध सारे में, रूहानी जीवन के विरुद्ध में, आपकी नष्ट करने वाला शत्रु ने एक और बड़ी फाटक को खड़ा किया था। नाश करने वाले वैरी ने बहुत बड़े बंधन को खड़ा किया ये है। आत्मा आने के कारण उन लोगों के फाटक टूट के नीचे गिर गया इस था। आत्मा ने औंधे करके वो पूरे बंधन से टूट गए। सब लोग आनंद मगन हो जाएंगे। सारे जने इस तरह आनंद बनाओगे। दिल की परमेश्वर की आत्मा आने से, दिल की परमेश्वर की, सभी बोलो, सभी बोलो, शरीर को छोड़ दो। चला जाता उजाला होता, अंधेरा चला जाता उजाला होता, दिल में परमेश्वर की आत्मा आने से लोगों के फाटक टूट जाएंगे। आप लोग को जगा लो, आज लोगों के फाटक टूट जाएंगे। अंधेरा चला जाता उजाला होता, दिल में परमेश्वर की आत्मा आने से, दिल में परमेश्वर की आत्मा आने से अंधेरा चला जाता उजाला होता, 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 अंधेरा चला जाता उजाला होता। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको विरोध में दोष लगाते हैं, शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, आपको कमजोरी को प्रकट करते जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ तूने बीमारी है, पवित्र आत्मा में मत भरो। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸਰਤ ਕਰ ਪਵਈ ਵਾਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, तूने उदास में पवित्र आत्मा को जगह मत दे दो। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ तूने ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ संकट ਦੇ। में पवित्र आत्मा को जगह मत दे दो। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧ कितने दिन पवित्र आत्मा में बढ़ के आपको क्या फायदा था? ਅਤੇ किस तरह ਜਿਹੜਾ शैतान ने तेरा आज परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? आज परमेश्वर की कहता है, स्वर्गदूत आ गया, वो स्वर्गदूत आ गया, जो भी आ गया, वो चांदन आ गया, स्तुति का वस्त्र मिल गया। आज तो तारीफ का वस्त्र लोगों मिल के गया। फाटक जरूर टूट जाएंगे। आज तो तेरे बंधन जरूर जरा सा दिल टूट की जाएंगे। परमेश्वर की आत्मा आने से, दिल की परमेश्वर की आत्मा आने से अंधेरा चला जाता उजाला होता, अंधेरा चला जाता उजाला होता, दिल में परमेश्वर की आत्मा। दिल की बात है, दिल की बात है, बोलो, दिल खोलो। आत्मा आने से अंधेरा चला जाता उजाला होता, अंधेरा चला जाता उजाला होता। परमेश्वर की आत्मा आने से, दिल में परमेश्वर की आत्मा आने से अंधेरा चला जाता उजाला होता, 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 अंधेरा चला जाता उजाला होता। क्या परमेश्वर का छोटी आपको नहीं चाहिए क्या? परमेश्वर चानन के द्वारा नहीं चाहिए अंधेरा में बढ़ गया क्या? कि तुझे अंधेरे से पे हो, अंधेरा में 10 लोग मिलके जाने से भी रास्ता पता नहीं चलते थे, अंधेरे ਵਿੱਚ अगर 10 लोग मिलके जानते हुए राह नहीं पता क्योंकि लगेगा। आप अंधेरे में था। तो क्यों अंधेरे में से? परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर की बोल रहा है, मेरी आत्मा आपके उछाला कर लेते हैं, मेरी आत्मा तो चानन में मेरा चला वचन होगा। आपकी उजाला कर लेते मेरा हैं। आत्मा तो चानन करेगा। उजाला होने के बाद क्या हो जाएंगे पता? चानन होने के बाद की होगा? कोई भी पाप है ये नहीं है, फिर कोई भी पाप नहीं है, कोई भी बुराई है ये नहीं कोई है, बुराई है ही नहीं, आप दुष्ट है ये नहीं कोई है। भी चीज से दुष्ट है। परमेश्वर ने लोगों के द्वारा शुद्ध करके पवित्र बना के उसकी अभिषेक के द्वारा नया कर लेते हैं। अरे परमेश्वर तने शुद्ध करके पवित्र बना के अपने मसंदरे नवा करता है। परमेश्वर आप में समर्पण करेंगे, परमेश्वर तने उसकी लोगों के द्वारा नया करना चाहिए। परमेश्वर इसे नवा कर दो। यीशु के लिए ये काम हो सकता है अति यीशु ने बोले काम और कोई भी नहीं कर सकते। और कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर आप में समर्पण करेंगे। परमेश्वर तने सौंप दो। हालेलुया। मका नमक कथना का नमक कथनी भी का नमक कथना कना और नमक कथी कनारिया हमें
जीसस तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा होतर है, करूं आराधना करो पवित्रता करो ईश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा होतर है, करूं आराधना नया करो पवित्र है प्रभु नया करो अंधेरा अभी भी दिल में है, इसलिए स्तुति नहीं आ रहा है। अंधेरा होने में दिल में से इसके तारीफ नहीं आ रही, थाली बजाने के बल नहीं आ रहे हैं, ताली बजाने के बल नहीं है। जिंदा परमेश्वर आपके लिए जीवन देने वाला के लिए थाली बजाने की क्यों मन नहीं आ रहा है? परमेश्वर ताली वास्ते जो जीवन देता है उसे ताली बजाने मुझे नया कर दो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर मेरे जीवन से अंधेरा शत्रु चले जाने दो। प्रभु नया कर दो, नया कर दो, नया कर दो। सब लोग नया कर दो, नया कर दो, नया कर दो। पवित्र 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 तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा प्रभु है। सही बात, तू निकलो, ईश्वर आ गया।
नया करने वाला आपके बीच में, मेरे बीच में आ गया था। ये रोग की हाथ से छुड़ाने वाला जो भी आ गया, आप क्या कर रहे हैं? झक रहना चाहिए। हालेलुया। पतरस तूने बंधन में फंसा हो गया था। हे पतरस तू बंधन से पिया होया सी। अभी मेरे पीछे आ सकते क्या? कि तू मेरे पीछे आ सकता है। ज्योति में प्रवेश कर सकते क्या? कि चांदनी से दाखिल हो सकता है। सुय बुद्धि अंधेरा को लेके जाते हैं। अति अपनी बुद्धि हनेरे वाल लेके जाती है। परमेश्वर बोल रहा मेरे पीछे आ जाओ। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पीछे आ जा। अरे लोहा की फाटक को तोड़कर अति हर एक लोहे के फाटकों को तोड़ दे। मैंने आपको नाम लेके बुलाने वाला परमेश्वर आ गया था। परमेश्वर Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shabakara. मैं थोड़ा जिंदा परमेश्वर हूँ। तू इधर उधर ना वे क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। से विनती करवाऊंगा। अते तेरी भलाई के वास्ते मैं तेरी वैरियों तेरी बेइज्जती करवाऊंगा। मैंने तुझे अधिकार और राजधन दिया है। मैं तुझे इख्तियार और राजधन देता है। शत्रुओं को भगा भगा के मारेगा। तू वैरियों ने पजा पजा के मारेगा। राजधन मैंने दिया है। इस तरह का राजधन तन में देता है। तेरी ज्योति कभी मलिन नहीं होगी। तेरी जो चांदन है वो कभी भी अशुद्ध ना होगा। यहोवा तेरी सदा की ज्योति ठहरेगा। यहोवा तेरी हमेशा तेरी तरह चांदन रहेगा। देख तुझे वो प्रकाशमान करेगा। तेने वो प्रकाशमान करेगा। तू केवल उसी की आराधना कर। तू सिर्फ उसी की उपासना कर। केवल उसी की ओर ताक। सिर्फ तू असवाल वेख। तेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला तेरा परमेश्वर। तेरी दुआ को सुन के तेरा उत्तर देने वाला तेरा परमेश्वर है। इस मार्ग में तू थका नहीं। ओ मेरी दया और करुणा है। तू इस राह में थक नहीं गया। अति ये मेरी दया अति मेरी कृपा है। आगे भी मैं तेरे नाल रहूंगा। इससे तेरा परमेश्वर यहोवा कहता है।
आपने लहू लगा के प्रार्थना किया क्या है? कि ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? धर्मी के समान प्रार्थना किया क्या? ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? बंधन टूट गया था, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। हर एक छोदी में चमक गया था, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। स्वर्गदूत आपके लिए उतर आ गया था। ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। आपने बड़ी लोहे के गेट के सामने जाके खड़ा हो गया था। ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋ गए। कुशल के साथ चले जाओ, सब कुछ खुद भूल जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। यीशु आमीन। ये शब्द को विश्वास करने वाला कभी भी लज्जित नहीं होएंगे, इसलिए हम तारीफ करेंगे। इस शब्द पे निश्चय करने वाला कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर की तारीफ करांगे। हमारा परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़कर ये रोग की हाथ से छुड़ाया, जरूर हमको बाहर लेके आया, इसलिए तारीफ करेंगे। साडा परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰੋਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। प्रार्थना करने के लिए अच्छा मौका दिया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु जी। इस मीटिंग के शुरू से आखिरी तक तो बोझ उठाया, गाना गवाई कि तू आशीष दिया, सुना वचन के अनुसार प्रभु जी हमें हर एक पापड़ी दुनिया से आलिम करके इस टाइम में आलिम होने के लिए खुदांदा हमें हर एक अलग किया प्रभु जी। इन दिनों में हमारा आत्मिक जीवन के रुकावट के लिए कई किस्म के द्वारा खुदा बांधा हुआ हालत में रहते हुए हर एक को छुटकारा पाने के लिए तो मदद कर, कई बांध के द्वारा, कई कमिटी के द्वारा, घमन के द्वारा प्रभु जी, हमारा आदरण के कारण के द्वारा प्रभु जी हम बांधा हुआ हालत में प्रभु जी हर एक बांधा हुआ हालत से छुटकारा पाने के लिए दोस्त आत्मा से आपसे हमें छुड़ा के खुदांदा हमें अंधकार सच्ची से छुड़ा के हमें ज्योति के परमेश्वर हमें ज्योति में लेके आया प्रभु जी। इन दिनों में हर एक बांधा हुआ हालत से छुटकारा पा के हमेशा प्रभु जी परमेश्वर काम करने के लिए दीनदाई के साथ, आलिमी के साथ, नम्रता के साथ, पवित्रताई के साथ हर एक करने के लिए तुम मदद कर। बांधा हुआ हालत से छुटकारा पा के इंसान के देखने, मसीह की देख के इस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें छुड़ाया और प्रभु को पर भरोसा रखे आगे बढ़ने के लिए हर एक दुआ तारीफ के द्वारा पता रो के चलने के लिए तुम मदद कर। हर एक खुदाना दिन पर दिन खुदाना आदमी के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, धर्म का काम में आगे बढ़ने के लिए, खुदाना विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए खुदाना तुम मदद कर। हर एक बांधवार से छुटकारा पा के हर एक ज्योति के परमेश्वर जीवन में काम करने के लिए, हर एक जीवन के लिए, कामों के लिए, हर एक आशीष का काम बनाने के लिए तुम मदद कर। आखिरी दिन में आया प्रभु जी, कोई भी हाथ छोड़ने के लिए बांधा हुआ हालत से छुटकारा पा के आत्मिक जीवन में आगे बढ़ के तेरे राज्य को पाने के लिए खुदांदा तुम मदद कर। और कितने लोग प्रार्थना के लिए क्या आया उन तुम मुताबिक तो काम के वापस जाने चाहिए, तेरे हाजिरी साथ रहना। आज तो ये आएंगे तो कोई भी हाथ छोड़ने के नहीं, पाक पवित्र करके तेरे राज्य के लिए तैयार कर। बाकी वक्त साथ यीशु के नाम से मांगती हूँ, तारीफ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का निकर, परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ प्रभु के आगमन तक होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बार भी बताएंगे, मंगलवार रात को 10 बजे उधर भी धर्मी को प्रार्थना, करमिल को प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए मंगलवार सुबह 10 बजे रात को प्रार्थना है, पूरा लो आना चाहिए। इस बार आप अपने हर एक रुकावट को दूर करके आ जाओ, परमेश्वर ने आपकी रुकावट को दूर करेंगे। इस प्रार्थना में सभी शामिल होना, मैं शामिल होऊंगा ऐसे बोलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। काम करने वाला काम करके जा सकते, आज काली सफाई करना और एक्स्ट्रा कुछ काम है ही नहीं।